Hello dear learners, welcome to the e-lecture on past perfect tense. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. In the previous e-lectures we studied present tense, and now we are continuing past tense, in which we have already studied simple past tense. In today's e-lecture, we will study past perfect tense. So let's begin our e-lecture. So we will first understand what is the form of past perfect tense, which means how does a verb used in the past perfect tense. This tense is formed with had plus past participle or third form of the verb. Past perfect tense में हम had यूज़ करते हैं प्लस पास्ट पार्टिसिपल जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी समझा था, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं. द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग नॉट आफ्टर हैड. पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी हैड के बाद नॉट यूज़ लिखेंगे, नॉट यूज़ करेंगे, और नॉट के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, विच इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. The interrogative is formed by placing had before the subject. Past perfect में interrogative sentences बनाने के लिए had को subject से पहले लिखा जाएगा, क्योंकि interrogative में हम जो हमारी auxiliary verb होती है उसी से interrogative sentence शुरू करते हैं. Either auxiliary और modal verbs या फिर जो WH words हैं उनसे हम interrogative sentences बनाते हैं. इसीलिए पास्ट परफेक्ट की जो ऑक्सिलरी है हैड, उसे सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दिस इज हाउ वी फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ लेट्स रीड सम ऑफ द सेंटेंसेस. सो इन अफर्मेटिव इट इज I had played. So I had played is I is subject plus had is the past perfect auxiliary plus the past participle, that is the third form of the verb play. So it is played. I had played. I had played का negative बनेगा I had not played. जो not है उसे हम auxiliary के बाद लिखते हैं, और जो हमारी past participle verb है उससे पहले लिखेंगे. So it is I had not played. Next, we had played. Negative बनाएंगे we had not played. You had played. You had not played. He had played. She had played. It had played. Negative बनेगा he had not played. She had not played. It had not played. They had played. They had not played. Ram had played. Ram had not played. Boys had played. Boys had not played. So I think you all must have noticed कि जो हम auxiliary यूज़ कर रहे हैं had, वो एक common auxiliary है past perfect में. जैसे सिंपल पास्ट में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ऑक्सिलरी डिड यूज़ कर रहे थे, जो कि सिंगुलर, प्लूरल, नाउन और प्रोनाउन सबके लिए कॉमन है. सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हम ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हैं हैड, वो भी सिंगुलर और प्लूरल, नाउन और प्रोनाउन सबके लिए कॉमन है. नाउ वी विल सी हाउ इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड इन past perfect tense. So as we studied earlier in today's e-lecture,
To form interrogative sentences, we will first use the auxiliary had plus subject plus past participle of the verb. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है had I played, और इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो सेंटेंस बनेगा had I not played. जो not है वो हम सब्जेक्ट के बाद और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब से पहले लिखेंगे. had we played, had we not played, had you played, had you not played, had he played, had she played, had it played, had he not played, had she not played, had it not played, had they played, had they not played, had Ram played, had Ram not played, had boys played, had boys not played. So this is how interrogative and interrogative negative sentences are formed in past perfect tense. Now let's see where do we use past perfect tense. So the past perfect tense is used to express an action completed before a certain moment in the past. ऐसा एक्शन जो किसी निश्चित समय से पहले खत्म हो गया था पास्ट में, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट 9 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड. तो जो 9 PM है वो एक सर्टेन मोमेंट है पास्ट का कि इतने बजे वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था. तो जो एक्शन है वो है शॉप्स के क्लोज होने का, तो वो 9 बजे ख़त्म हो गया था, ओवर हो गया था, फिनिश हो गया था. तो इसीलिए हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हुए, क्लोज वर्ब का पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर राइट करेक्ट फॉर्म लिखा है हैड क्लोज्ड. नेक्स्ट, एट 16 years she had passed her graduation. So at 16 years, this is a certain moment, this is a definite time जब वो काम ख़त्म हो चुका था, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था. तो जो हमने मेन वर्ब है हमारी पास, उसका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हुए लिखा है हैड पास्ड हर ग्रेजुएशन. तो ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में किसी निश्चित समय ख़त्म हो गया था, एक सर्टेन टाइम में ख़त्म हो गया था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, to express an action in the past which was completed before another action also in the past. मैंने सिंपल पास्ट वाले ई लेक्चर में भी आप सबको बताया था कि जब हमारा एक क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो हमारा दूसरा क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होता है. तो जब कोई एक्शन किसी एक एक्शन से पहले ख़त्म होता है, और पास्ट में ही, हम पास्ट के ही दोनों एक्शंस की बात कर रहे हैं, दोनों एक्शंस ही पास्ट में ख़त्म हुए, लेकिन दोनों में से जो पहले ख़त्म हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, और जो एक्शन बाद में ख़त्म होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं. सो लेट्स एनालाइज दीज एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर. आई हैड लॉक्ड द रूम्स बिफोर वी लेफ्ट द हाउस. तो एक क्लॉज है हमारा आई हैड लॉक्ड द रूम्स, और जो दूसरा क्लॉज है वो है बिफोर वी लेफ्ट द हाउस. तो पहले कौन सा काम ख़त्म हुआ? रूम्स को लॉक करने का काम पहले ख़त्म हुआ. तो जो एक्शन पहले ख़त्म हो रहा है पास्ट में, उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है हैड लॉक्ड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है. और जो दूसरा एक्शन है लीविंग द हाउस, वो क्योंकि बाद में ख़त्म हुआ है तो उसके लिए हमने सिंपल पास्ट यूज़ करते हुए लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट यहाँ पर लिखा है. अनदर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलरेडी नोन द रिजल्ट व्हेन शी रैंग मी अप. तो पहले क्या हुआ? पहले से मुझे रिजल्ट पता था, उसका फ़ोन आने से पहले मुझे रिजल्ट पता था. तो पहले कौन सा एक्शन ख़त्म हुआ? रिजल्ट जानने वाला. इसीलिए हमने हैड ऑलरेडी नोन. ऑलरेडी जो वर्ड है वो बेसिकली हम परफेक्ट में यूज़ करते हैं. तो हैड ऑलरेडी नोन यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है क्योंकि रिजल्ट वाला एक्शन हमारा पहले कंप्लीट हुआ है, और जो बाद वाला एक्शन है रिंगिंग अप वाला, क्योंकि वो बाद में ख़त्म हुआ है तो हमने यहाँ सिंपल पास्ट यूज़ करते हुए रिंग अप का सेकेंड फॉर्म रैंग अप यूज़ किया है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स ऑफ द पास्ट. पास्ट की ऐसी कोई डिज़ायर्स जो कि अनफुलफिल्ड रह गई हों, जो कि पूरी ना हुई हों,
उन अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैड लिसन्ड टू माई फादर्स एडवाइस बट आई डिड नॉट लिसन. बट आई डिड नॉट लिसन मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि काश मैंने मेरे फादर की एडवाइस को सुना होता. आई हैड लिसन्ड टू, पर क्योंकि वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, इट मीन्स मैंने नहीं सुना. इफ़ ओनली ही हैड नॉट वेस्टेड हिज टाइम, काश उसने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया होता. ये एक मेरी डिज़ायर है बट ये फुलफ़िल नहीं हुई, क्योंकि ये इफ़ यानी काश पे ही अटक गई. ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, तो इसका मतलब है बट ही वेस्टेड, काश उसने अपना वक्त बर्बाद ना किया होता लेकिन उसने किया. तो ऐसी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स ऑफ द पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाता है. टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबल अनफुलफिल्ड कंडीशंस ऑफ द पास्ट. पास्ट की कुछ कंडीशंस जो कि इम्पॉसिबल हैं. इम्पॉसिबल कैसे हैं कि जिनको अब आप पूरी नहीं कर सकते हैं, जो कि अब अनफुलफिल्ड रहेंगी. ऐसे अनफुलफिल्ड इम्पॉसिबल कंडीशंस ऑफ द पास्ट के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट. अगर तुमने पास्ट की वो कंडीशन फुलफिल कर ली होती, अगर तुमने वर्क हार्ड कर लिया होता तो तुम पास हो गए होते. बट इफ़ लगने से क्या हुआ, ये कंडीशन हुई, और ऐसी कंडीशन जो कि पास्ट की है, जो कि अब इम्पॉसिबल है पूरी करना. नेक्स्ट, इफ़ ही हैड लेफ्ट अर्लियर ही वुड हैव रीच्ड इन टाइम, विच मीन्स वो पहुंच गया होता टाइम पर, अगर उसने सही समय पर वो निकल गया होता. लेकिन अब वो कंडीशन ऑफ द पास्ट अब फुलफ़िल नहीं हो सकती है, उसको फुलफ़िल करना अब इम्पॉसिबल है. तो ऐसी इम्पॉसिबल अनफुलफिल्ड कंडीशंस ऑफ द पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट परफेक्ट tense. Where to use simple past and where to use past perfect tense. Number 1. The simple past is used to narrate past events in the order they take place. जब हम किसी पास्ट इवेंट का पूरा नरेशन बताते हैं इन ऑर्डर, क्रम वाइज जब हम चलते हैं कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, जब हम ऐसे ऑर्डर में पूरा इवेंट नरेट करते हैं तो नरेशन के लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I got up at 5 and studied for 2 hours. After taking a bath, I took breakfast. Then I went to school on my bicycle. So, all the verbs in the italics are in the simple past. तो ये पूरा नरेशन है, पूरा पास्ट इवेंट नरेट किया जा रहा है कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ. ऐसे पास्ट इवेंट्स को ऑर्डर में नरेट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, if however the order of events is not followed in the narrative, the past perfect is used to tell the correct order. The past perfect is used for the earlier event. लेकिन ऐसा हो कि हम ऑर्डर में इवेंट को नरेट नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे हमने उस नैरेटिव को कर दिया है, तो पास्ट परफेक्ट यूज़ किया जाता है करेक्ट ऑर्डर बताने के लिए. करेक्ट ऑर्डर के लिए पास्ट परफेक्ट कैसे यूज़ करेंगे, जैसा हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले पढ़ा इसी ई लेक्चर में कि जो काम, यदि 2 काम एक साथ फिनिश हुए हैं पास्ट में, तो जो काम पहले फिनिश होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में नरेट करते हैं, और जो काम बाद में फिनिश हुआ है पास्ट में ही, उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल्स. बिफोर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर 2 hours. तो ब्रेकफास्ट करने से पहले, तो पहले अगर हम ये लिखते आई स्टडीड फॉर 2 hours एंड देन टुक ब्रेकफास्ट, तब हम उसको सिंपल पास्ट में नरेट करते. लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया. रिवर्स कैसे कि जो काम बाद में हुआ उसे पहले बताया जा रहा है, और जो काम पहले हुआ उसे बाद में बताया जा रहा है, लेकिन एक्शन जो पहले फिनिश हुआ है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं. तो हमने यहाँ लिखा है हैड ऑलरेडी स्टडीड. नेक्स्ट, आई हैड टेकन अ बाथ बिफोर आई टुक ब्रेकफास्ट. ऑलराइट, तो यहाँ पर 2 एक्शंस हैं. 2 एक्शंस में से जो पहले का ख़त्म हुआ है उसके लिए हमने यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट टेंस. देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन completed before some special past moment we have in mind.
अगर हमने कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन, कोई स्पेशल मोमेंट फिक्स कर रखा है, माइंड में डिसाइड कर रखा है, और उस टाइम पीरियड से, उस मोमेंट से पहले अगर कोई काम फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम ही अराइव्ड आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, विच मीन्स मेरे दिमाग में था कि उसके आने से पहले, वो मोमेंट मैंने माइंड में डिसाइड कर रखा था, उसके आने से पहले मैं अपना काम फिनिश कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था. तो वो एक्शन मेरा कंप्लीट हो गया उस मोमेंट से पहले जो कि मैंने माइंड में डिसाइड कर रखा था. नेक्स्ट, बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट आई हैड इन्फॉर्म्ड माई पेरेंट्स. तो फ्लाइट बोर्ड करने से पहले, जो कि मैंने डिसाइड कर रखा था कि इस मोमेंट से पहले मैं मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर चुकी थी. सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ past perfect and simple past in sentences. I hope with this video it is clear to you where to use simple past tense and where to use past perfect tense. If still you have some queries, you have some doubts, please feel free to write in the comment section. Thank you very much.